Hello Mitro, good morning. Right, today we continue over the exercise, right? 1.1. You already know that the set theory and sets, okay, and discrimination of the set. The two methods. One is a set builder form and another is a roster form. The listing methods also you say that, right? So let's start the question number 5. List of the all the members, okay, of the following here, right? The first of that here, students, first a, right? A, that means here is given that x is an odd natural number, okay? X is an odd natural number, so you know that natural number starting but odd: 1, 3, 5, 7, 9 up to, okay, infinite. They are all are the odd numbers. So clear first questions, right? Number 2, b, x is an integer minus 1 by 2 less than x less than 9 by 2. So minus 1 by 2, that means 1 by 2, that means 0.5. How much? 0.5, right? Okay. And 9, that means the 9 by 2, that means 4.5. So integer is a 4. Okay, so 4.5 less than, city was at 4, right? The 4 is less than 9 by 2. So here, so set B is equal to, okay, so here the 0, 1, 2, 3 and 4. Why not take 5? Because 9 by 2. Okay, between minus 1 by 2 to 9 by 2. Okay, so minus 0.5 to 4.5. So all are integers 0, 1, 2, 3 and 4. Okay. Now see, x is an integer, x square less than 4. It's the first point, x square. Okay, so you know that here the x square. So that means x is equal to minus 2 and plus 2. So here minus 2 and 2, right? The value of x is between minus 2 include and 2. Okay. So ऐसे नंबर के स्क्वायर्स इंडिकेट करो जो 4 less than 4 or equal to 4 हो. So here is very simple. This is your indication. So the C set is equal to minus 2 included, we could less than or equal to. Okay, so minus 2, minus 1 square 1 is always less than 4. Okay, 0 plus 1 and plus 2, right? So you got the answer. Understand? Okay. Now fourth questions. X is a letter in the word loyal. Okay, so you know that this is the which kind of the form? Roster form है. Okay, X is the letter, so L, comma O, comma Y, comma A, right? L 2 times, so we return only 1 times. Understand? Okay. Now here E said X is a month of year not having the 31 days, right? Not 31 days. January 31 days. Feb. Okay. So चलो Feb, then March, April, May, June, January, February, March, April, May, June, July, okay, January, February, March, April, May, June, July, August, September, November, okay, finish, clear? Okay, they are not having the 31 days. Okay, 6, X is a consonant in the English alphabet preceding K से पहले वाले बच्चों. Okay, तो आप जानते हो वॉवेल्स कितने? A, I, O, U. Okay, A, E, I, O and U. तो K से पहले 3 आ जाएंगे, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, राइट? तो इसके अलावा 3 को छोड़ के आप लिख सकते हो, तो इट इज द B, C, D, E नहीं आएगा, H, I नहीं, H, I नहीं, J, ओके, H एंड K, राइट? तो प्रीसीडिंग K, A नहीं आएगा, A, B, C, D, E, E नहीं आएगा, H, G, H, H, G, A, B, C, D, E, F, G, E, F, E, F, G,
H I J and K. चलो क्लियर. नाउ 6 इन मैच. आपके सामने एक तरफ आपको क्या दिया है, कौन सा फॉर्म दिया है आपको बच्चों, ये वाला लिस्टिंग या रोस्टर फॉर्म में सामने आपके पास है टेक्स्ट बुक के अंदर, वो है सेट बिल्डर फॉर्म. तो मैंने यहाँ पे सीधे आंसर लिख दिया है 1 2 3 4, राइट. 1 2 3 एंड 6 दे आर द, सीधी बात है क्या है बच्चों, इट इज द फैक्टर ऑफ 6. ओके, तो x इज अ नेचुरल नंबर एंड द डिवीजर ऑफ 6 सब. ओके, नाउ 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 क्या हो सकता है, एक तो सीधी बात है प्राइम नंबर्स है, क्या है प्राइम नंबर्स है. तो दूसरा ऑप्शन उसी के बेस x इज अ प्राइम नंबर्स एंड द डिवीजर ऑफ 6. 2 एंड 3 प्राइम डिवीजर ऑफ 6. ओके, फिर मैथमेटिक्स लिखा है. ओके, तो x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स. फिर 1 3 5 7 9, तो ये सब क्या है, ऑड नंबर्स है. तो x इज एन ऑड नंबर, नेचुरल नंबर्स. ओके, लेस देन 10. 10 से छोटे सारे हमारे पास ऑड नंबर्स है. क्लियर, ये सब बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट, वी स्टार्ट द सम डेफिनेशंस. ओके, ओके बच्चों, so some types of the different types of the sets. Okay, type of the sets. Now first is the empty set. Empty set, right? A set containing no elements, okay, at all is called the empty set. Also the null set and also the void set. Okay, तो कोई भी अगर सेट के अंदर अगर आप मानते हो कि कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो all sets are called the empty या null set या void set, right? Okay, so it is denoted by phi या the is simply the empty braces. Clear? Okay, so I give the example when x belongs to n, 2 less than x less than 3. Okay, so the natural number between 2 and 3. ओके, तो 1 2 3 4 तो नेचुरल है, 2 और 3 के बीच में और कोई नेचुरल नंबर्स नहीं है. सो दिस इज द नल सेट. ओके, अंडरस्टैंड दिस. ओके, नाउ द सेकंड टाइप इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट. सिंगलटन वर्ड से ही पता चल जाता है. तो अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, राइट. क्या है, ओनली वन एलिमेंट्स, हाँ, एग्जैक्टली वन, इट्स कॉल्ड अ सिंगलटन सेट. दैट मींस अगर आप मानते हो कि समझो कि मैंने ऐसा लिखा है तो ये सिंगल टोन सेट है. मान लो सेट में मैंने ऐसा 5 भी लिखा तो ये सिंगल टोन सेट है. ओके, यहाँ पे ये सिंबल हो गया और वो एलिमेंट हो गया सेट का, राइट. अंडरस्टैंड, तो वन एलिमेंट, सो दैट्स व्हाई कॉल्ड द सिंगल टोन सेट. चलो क्लियर. ओके, नाउ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट बच्चों. फाइनाइट सेट्स, ओके, सो फाइनाइट सेट दैट मींस द empty set or a non-empty set in which the process of counting of the elements surely comes to an end. यानी जो मेंबर्स होते हैं, जो सेट के मेंबर्स है, आप उसको काउंट करना शुरू करो और आप एंड तक पहुंच पाओ ना, वो सारे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं. क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट, राइट. एंड अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट, एंड जिसका एंड पॉसिबल नहीं है. So okay, so a set which is not finite is called the infinite set. Clear? Okay, now importance, the number of the distinct element, this why it is called the distinct. Okay, but distinct, that means different. So the number of the different elements, the distinct contained in the finite set A, it is denoted by number of A. So number of set A is the symbol of the sets, how many members in the given set. For example, you have the A is equal to 1 2 3, right. You return here the number of A set is the element 3. Got it? So it's very important. Okay, so number of A, this symbol is, right. How many elements? So 3. It is denoted by number of A is equal to 3, right. Now equal sets. So example of the finite and infinite set, the first of the every number sets. Okay, natural number set, whole number set, integer, okay, real numbers, all n z q r, all are the infinite set. Clear?
Understand this? Okay, even number set, odd number set, all are the infinite sets. So clear? Okay, now equal sets here बच्चों. So equal set मतलब the two set A and B, okay, are said to be equal if they have exactly same elements. Alright, it is called the equal set. And also we can written here A is equal to B. मतलब two set है A and B, तो A equal to B. P है तो P and Q. Understand? Right? Okay. Now the equivalent sets बच्चों. Two finite sets A and B. Two finite, countable, right? Two finite sets, okay, are said to be equivalent if number of A is equal to number of B. Means, okay, number of elements of the both the sets are equal, not members equal, but number of elements are equal, then it is called the equivalent set. So what is the difference of these two sets? Equal and equivalent. Equal set मतलब all members are same, right? And equivalent set, that means only number of elements same, right? मतलब सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स है, बोथ आर डिफरेंस, एक में ए बी से, एक में 1 2 3 है, ओके, तो उसको आप इक्विवेलेंट सेट कह सकते हो, नॉट अ इक्वल सेट. Understand? All equal set is equivalent, but odd equivalent set is not equal. Understand? Clear these points? Okay. So they are the all types of the different types of the sets. Empty set, singleton set, finite, infinite sets. Okay. Then after equal set and equivalent set. They are all basic information about the sets, right? Yeah, importance है. Prepare this. Okay. Write down. Clear? Okay, let's start the exercise. Okay. Okay बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट. ओके, तो अभी तक आपने सारी डेफिनेशन देखी, उसी बेस आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. बहुत सिंपल है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट? व्हाट इज द definition of null set, empty set? A set is containing no elements, yeah, without elements, each called the non-empty set, right? Okay, so set of odd natural numbers which is divisible by 2, right? So first, what is the definition of odd numbers? A number which is not divisible by 2 is called the odd numbers, right? तो कोई भी odd number 2 से divisible नहीं होगा, तो ऐसा हमें कोई नंबर मिलने वाला नहीं है. सो दिस इज द नल सेट, राइट? तो यस, इट इज अ नल सेट. ओके, दिस सेट इज अ नल सेट. अंडरस्टैंड? ओके. नाउ द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. इवन नंबर्स मतलब ऑल नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, राइट? तो स्टार्टिंग यू नो दैट 2 4 6 8 अप टू इंफिनिटी, ऑल इवन नंबर्स, राइट? ओके, तो बट क्या बोला? इवन प्राइम बोला है. तो प्राइम नंबर दैट मीन्स अ नंबर हैज 2 एलिमेंट्स, वन एंड इटसेल्फ, राइट? तो इसमें से देखो, इसके फैक्टर से इसके फैक्टर से इसके नहीं है, तो सीधी बात है बच्चों, इसका आंसर है 2. ओके, तो इज नॉट नल सेट, राइट? ये क्या हो गया बच्चों? सिंगलटन सेट हो गया, 1 एलिमेंट हो गया. अंडरस्टैंड दिस? ओके, तो इज नॉट अ नल सेट. चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. x is a natural number, x greater than 5 and x less than 5 and x greater than 7. ओके, मान लो आपको नेचुरल नंबर, तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स है, कौन से? 1 2 3 4, और 7 से भी है, राइट? 7 से भी ज्यादा, 8 9 10 अप टू इंफिनिटी, बट सेम नंबर्स नॉट साइमल्टेनियसली इज पॉसिबल. समझ रहे हो ना? एक ही नंबर ऐसा है जो 5 से कम भी हो और 7 से ज्यादा भी है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल है? नो, राइट? तो इट इज, आप कह सकते हो बराबर, दिस सेट इज नॉट, सॉरी, इट इज बराबर, ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है, सो इट इज अ नल सेट. बराबर है ही नहीं, कोई एलिमेंट से ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो नल सेट है. ठीक है? ओके, चलो एक स्टेप्स आगे बढ़ते हैं. तो फिर why is a point common to any two parallel lines? So what is the definition of parallel lines? A line does not intersect each other, then that's why it is called the parallel lines. तो कोई भी parallel lines के अंदर कोई point common नहीं होता.
अगर कॉमन होता तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाता, राइट. फॉर एग्जांपल दिस एज एंड दिस एज 40, they are never intersect. Understand? Okay, so this is also null set. Okay, this is also null set. So understand? Clear? So null set clear? Okay, so now second exercise, बच्चों, which of the following sets are finite or infinite? Right? Okay, so first of that, finite or infinite, that means, okay, what is the finite set? The set containing the elements which काउंटिंग टू एंड, यानी आप जो भी फाइनल सेट होता है तो उसका जो एलिमेंट्स है वो आप उसको काउंट कर सको, मतलब काउंटिंग में एंड तक पहुंच सको. ओके, एंडिंग नंबर कह सको कि वो कितना है, तो इट इज फाइनाइट. और जो फाइनाइट नहीं होता है वो सब इनफाइनाइट है. तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, द सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर, लाइक, ओके, क्या कहोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ओके, मई, और फिर जून, में है, फिर जून, ओके, जुलाई, फिर अगस्त, ओके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट. काउंटेबल, इससे अलावा नहीं है. यस, काउंटेबल 12, यू काउंट एट द डेट. तो यस, दिस इज द, क्या लिख सकते हो, फाइनाइट सेट. चलो अंडरस्टैंड, बिकॉज काउंटेबल है, ओके, जिसका एंड पॉसिबल है. ओके, एंड मैं कह सकते हो. ओके, दिस वन 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी. सो दिस इज द सेट ऑफ, आई थिंक, नेचुरल नंबर. मैंने पहले बताया ऑल नंबर सेट इज मोस्टली इनफाइनाइट सेट. सो दिस इज द इनफाइनाइट सेट. अंडरस्टैंड? ओके, अगर इसी में आपको बताओ कि ए क्या हो गया, फाइनाइट है, इसकी वजह नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 12, राइट. 12 मंथ. ओके, तो सीधी बात है ना. ओके, चलो, द सेट ऑफ पॉसिबल इंटीजर, अ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100. पॉजिटिव 100 से ज्यादा तो कितने हैं, बहुत इनफाइनाइट है, राइट. बहुत सारे हैं, अनकाउंटेबल है सब, जहां तक गिनती आती है वहां तक, राइट. तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया. लेकिन यहाँ पर मैं ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन लिख दूं तो ये वापस फाइनाइट हो जाएगा. ओके, चलो 1 2 3 4 9 2 100. तो देखो यहाँ पे अनकाउंटेबल नहीं है, लास्ट पॉइंट है आपके पास, क्या है, 100, तो काउंटेबल हो गया, राइट. तो इट इज ऑल्सो द बच्चों फाइनाइट सेट. दिस वन इज अ फाइनाइट सेट, राइट. तो फाइनाइट है तो कितने एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, आप कह सकते हो सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 100, बिकॉज ये फाइनाइट है इसीलिए लिख सकते हो. इनफाइनाइट होगा तो नहीं लिख सकते. ऑल आर डिस्टिंक्ट, 1 2 3 4 5 99 to 100, all are distinct elements है. Okay, right. Okay, now the set of prime numbers less than 99, right. तो set of prime numbers बच्चों, prime की बात हो रही है, तो prime number शुरू होता है 2 3, okay, 5 7 11 13 17 19, right, 23, okay, 29, so on up to 99. तो 99 नहीं है, लेस देन 99 है. ओके, तो लेस देन कितना आएगा, अप टू तो 97. यस, एक काउंटेबल है. तो आप क्या लिख सकते हो, दिस इज आंसर इज इक्वल टू फाइनाइट सेट. क्या लिख सकते हो बच्चों, इट इज द फाइनाइट सेट. अंडरस्टैंड दिस. तो अगेन द फाइनाइट, फर्स्ट पॉइंट इज अ नल सेट एंड सिंगलटन, मतलब नल सेट. सेकंड इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट. चलो, क्लियर? एनी डाउट्स फॉर दिस? नो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज. ओके बच्चों, चलो, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, राइट. फाइनाइट और इनफाइनाइट. तो फर्स्ट ऑफ दैट, द सेट ऑफ द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो आप जानते हो इनफाइनाइट लाइंस मिल सकती है, राइट. द सेट ऑफ लाइंस बोला है. ओके, तो बहुत सीधी बात है कि ए अल्टीमेटली क्या है बच्चों, इनफाइनाइट, राइट. देखो, ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कितनी लाइंस ऊपर नीचे मिल सकती है हमें, राइट. तो आप लिख सकते हो इट इज अ इनफाइनाइट सेट. चलो, क्लियर? द सेट ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट, तो कितने बच्चों, ए बी सी डी ई डी और ई एफ जी एच आई जे के, ओके, अप टू, ओके, एक्स वाई जेड, बट इट काउंटेबल एंड जेड इज अ 26 नंबर, तो टोटल 26 है. सो दैट्स व्हाई इट इज अ, ओके, फाइनाइट सेट. क्या लिखते हो बच्चों, इसको फाइनाइट सेट. समझ में आ गया? ओके, एंड इज पॉसिबल, राइट. काउंटिंग एड, तो इस सेट हो गया आपका
राइट। तो इसको क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एलिमेंट्स आर 26, फाइनाइट है इसीलिए। ओके, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं बच्चों। ओके, तो 5 के मल्टीपल आप देखो 5, 10, 15, 20 राइट अप टू अनकाउंटेबल। ओके, जिसका एंड पॉसिबल नहीं है। 1 लाख भी है वो 5 से है, तो कितने भी नंबर्स ऐसे 0 से जुड़ सकते हैं। सो दिस इज द इनफाइनाइट सेट। क्या है बच्चों, दिस इज द इनफाइनाइट। चलो ये इनफाइनाइट सेट हो गया राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ओह, कितनी सारी, ओके कितने सारे अलग अलग टाइप्स के, तो आप कह सकते हो सर ए बी ऑल्सो द, बहुत डाइवर्सिटी है राइट। सो इनफाइनाइट सेट। चलो ओके, इनफाइनाइट सेट, अंडरस्टैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 5 है सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, तो आप मान लो मैंने अभी बताया ये ओरिजिन है, तो इसमें से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, ऐसा अलग अलग रेडियस वाले। ओके ऐसे, ओके तो इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज द इनफाइनाइट राइट। तो सर्कल का इक्वेशन है आप पढ़ोगे x² + y² इज इक्वल टू r²। तो रेडियस अलग अलग वाले बहुत सारे पास हो सकते हैं। सो दिस इज द इनफाइनाइट सेट, कह सकते हो आप इसको। अगेन चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। तो ए है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी, मतलब इक्वल है कि नहीं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स, तो व्हेन द ए एंड बी सेट्स आर इक्वल because if all the elements of these are exactly same right, so it is called the a equal to b। तो देखो यहाँ पे a b c d है बच्चों, यहाँ पर b c d है, ऑर्डर चेंज है बट a तो a है, b भी है, c भी है, यस। तो हियर a इज इक्वल टू b राइट, इस केस के अंदर पॉसिबल है राइट। ओके, और जो इक्वल होता है वो इक्विवेलेंट होता ही है बच्चों, समझ में आ गया। ओके चलो 2 4 6 8 10 ए सेट, बट सेट बी क्या है, एक्स इज, तो मैं यहाँ पे पहले नीचे लिखता हूँ बी इज इक्वल टू क्या है बच्चों, ए सेट बिल्डर फॉर्म में सिंपल लाओ, इवन नंबर से पॉजिटिव इवन इंटीजर है और लेस देन 10 और 10 को लेना है। तो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 ऑल आर इवन, ये तो सेम हो गया। सो ऑल्सो इट इज द ए इक्वल टू बी राइट। ओके, ए भी इक्विवेलेंट भी है, कितने नंबर ऑफ ए मतलब सेट कितने एलिमेंट्स कितने 1 2 3 4 5 इक्विवेलेंट है और फाइनाइट भी है, साथ में आपको समझ में आ रहा है। ओके, ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पे देखो तो ए एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। ओके, तो सेट ए क्या बनेगा बच्चों, मल्टीपल ऑफ 10, सो 10 20 30 40 और सो ऑन राइट। और देखो सेट बी में कौन एक नंबर आ रहा है, 15 आ रहा है, 25 आ रहा है, जो ए में नहीं है। तो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, भले इनफाइनाइट हो, तो हियर ए डज नॉट इक्वल टू बी, अंडरस्टैंड। तो हमें यहाँ पे 3 केस में इक्वल टू बी मिला, एक केस में नहीं मिला। चलो अंडरस्टैंड, क्लियर। ओके चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो भी एक साथ साथ देख लेते हैं, वो खत्म हो जाए फिर राइट। ओके, जी के लिए भी इम्पोर्टेंस है, बट जो टेक्स्ट बुक पे दिया है वो क्या लिमिटेशन के अंदर है। ओके, इसके तो बहुत सारे इनफाइनाइट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मेरे पास उसका सम है क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअल में क्या है। ओके, यहाँ पे आर द पैड्स ऑफ द सेट्स आर इक्वल और गिव रीजन। ओके, तो मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों ए इज इक्वल टू 2 3 एंड सेट नंबर जो बी है वो आपके पास जो है वो एक्चुअल में एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ओके तो x where x is a solution okay of x² plus 5x plus 6 is equal to 0 I think right, ऐसा ही दिया है। ओके, तो मैं पहले चेक कर लेता हूँ बच्चा इसका सॉल्यूशन x² plus 5x plus 6 is equal to 0। so इधर 2 factor x plus 2 x plus 3 is equal to 0, तो सॉल्यूशन सेट है x is equal to -2 x is equal to -3 राइट। अब चेक करो a आपके पास है 2 3 और आपके पास जो b की क्वांटिटी है वो -2 -3, तो सीधी बात है a नॉट इक्वल टू b, बट a इक्विवेलेंट टू b है राइट, बट नॉट इक्वल टू में पूछा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है x इज अ लेटर वर्ड फॉलो,
ओके, सो मैं सेट डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉलो, तो एफ एल ओ एंड डब्ल्यू, राइट, इतना है। एंड सेट बी, राइट, मेरे पास सेट बी है, इट इज द वाई इज द लेटर ऑफ द ओके वर्ड वुल्फ, वुल्फ मतलब डब्ल्यू ओ एल एफ, राइट। चेक करते हैं बच्चों, यहाँ पे डब्ल्यू है, डब्ल्यू ओ भी है, एल भी है, एफ है, यस। तो ए इज इक्वल टू बी, ऑल्सो इट इज ए इक्विवेलेंट टू बी। चलो क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल चीज है। फ्रॉम द सेट्स आर गिवन बिलो, सेट्स सिलेक्ट द इक्वल सेट, खाली इक्वल सेट आपको बताना है। तो चलो ये भी 1 सेकंड के अंदर वो देख लेते हैं बच्चों। ओके, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, चैप्टर अगर समझो तो 4 एक्सरसाइज के बाद शुरू होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स आर इक्वल और नॉट। चलो सबसे पहले मैं सेट ए लिख रहा हूँ बच्चों, कितना दिया है वो, तो 2 है, 4 है, 6 है, 2 4 सॉरी 8 एंड 12, तो 8 एंड 12। मेरे पास सेट बी है, राइट, तो सेट बी है वो 1 2 3 4 है। चलो सेट सी, राइट, तो सेट सी है 4 है, 8 है, 12 है एंड 14 है, राइट। ओके, उसके बाद सेट डी ले लेते हैं। तो सेट डी में आपके पास क्या है, 3 है, 1 है, 4 है, 2 है। चलो उसके बाद जी सॉरी ई है, सेट ई। चलो सेट ई -1 1, फिर एफ है, तो एफ कितना है मेरे पास यहाँ पे 0 एंड ए, ओके 0 एंड ए है। और जी जो है वो 1 एंड -1 है, और उसके बाद एच है 0 एंड 1 है, क्या है 0 एंड 1, राइट, 0 1 है, क्लियर। तो चलो मुझे बताओ यहाँ पे क्या पूछा है हमें क्वेश्चन, इतने सारे नंबर सेट है आपके पास, अलग अलग सेट है। बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो लेट्स सी दैट, चलो ढूंढो यहाँ से, ये 2 4 8 12 थोड़ा इसे सेम लग रहा है, बट यहाँ पे अलग आ गया। ओके 1 2 3 4 1 2 3 4 दिख रहा है, यस। तो पहला आंसर आपका है P इज इक्वल टू डी। चलो आगे बढ़ते बच्चों, और कोई दिख रहा है E और G, तो E इज इक्वल टू G, राइट। तो दोनों सेट इक्वल है, -1 1, बाकी और कोई से 0 0, बट A है और यहाँ पे 1 है, राइट। तो कोई सेट नहीं है। चलो अंडरस्टैंड, इतना बेसिक कंसेप्ट, सारी जो डेफिनेशन है वो प्रिपेयर रखो ताकि आपको बहुत हेल्पफुल रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इन नेक्स्ट लेक्चर ओके वी कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 1, ओके, एंड द इम्पोर्टेंस टॉपिक, राइट। तो कहीं पर नहीं जाइए, कनेक्टेड रहिए, एंड टिल देन एंड बाय बाय।